Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. So if there is one sector which has like skyrocketed in last 5 years, it's gonna be the EV sector, the electric vehicle sector. Now, electric vehicles, they're said to be the next big revolution. Electric vehicles, the buzzword, the future of green mobility. EVs are being pitched as cleaner, greener, and sustainable. By 2030, 80% of 2 and 3 wheelers, 40% of buses, and 30% of cars in India will be EVs. There's 1 million vehicles sold already in 2023. The electric vehicle market across the world has grown at a compounded rate of 50% between 2019 and 2021. So today we're gonna talk about only about EV stocks, electric vehicle related stocks. And if you guys know me, I have been a very strong believer in EVs. And मैं जब दुबई शिफ्ट हुआ 2021 में, my first car was Tesla Model 3 as well, which I kept it for like 1 year. And while I was waiting for my Porsche Taycan, of course, then I have been like driving my Porsche Taycan 4S since then. And it has to be the best car in the world what I have driven, never ever getting bored as well. And I have not spent a single rupee on fuel or maintenance till now. That is the beauty of EV cars कि आपको मेंटेनेंस में कोई पैसा खर्चा नहीं होना एंड फ्यूल में भी कोई पैसा नहीं खर्चा. ऑफ कोर्स ओवर स्पीडिंग में चली जाती है क्योंकि EV cars are just low, so fucking powerful. Like of course you cannot just maintain the speed limits and be in the speed limits all the time. Anyways, so आज वाले वीडियो में we are going to talk about like 20 EV related stocks. So those stocks we and stocks related video है मतलब of course we have to show the stocks, we have to see the stocks, fundamental technical analysis करेंगे. So without seeing the stocks of course it's not gonna happen. And of course this video is not like stock recommendation कि आप खरीद लो, मैं खरीद रहा हूँ, ये वो कुछ नहीं है. We are only going to discuss about the stocks. Rest it's up to you कि आप कैसे उसको रिसर्च करोगे, क्या डिसीजन लोगे, एंड मे बी यू नीड टू कंसल्ट समवन एल्स, मे बी योर फाइनेंशियल एडवाइजर समथिंग एल्स. एंड आई वाज जस्ट चेकिंग लाइक 70% ऑफ पीपल हु आर वाचिंग द वीडियोज आर नॉट सब्सक्राइब. भाई सब्सक्राइब कर लो, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है. नीचे में एक रेड कलर का बटन है, उसको दबाओगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा. एंड वंस यू सब्सक्राइब एटलीस्ट यू वुड बी गेटिंग ऑल द नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम व्हेनेवर आई एम अपलोडिंग ऑल ऑफ दोज वीडियोज. ठीक है. एंड द सेकंड थिंग इज लाइक आई ट्रेड एंड आई इन्वेस्ट एज वेल. सो आई हैव गॉट लाइक 2 courses as well, the paid courses. One is a sniper trading course which of course not for beginners. अगर आपको ट्रेडिंग आती है then if you're looking for a proper strategy, lifestyle strategy, then sniper trading strategy is great one. नीचे में लिंक है. And if you're looking for investing, of course investing वाला जो course है it can like be used by anyone, like beginner भी हो तो भी this is in sniper investing course can be used by anyone. Absolutely helpful, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. YouTube में रैंडम वीडियोस देखने से स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड वे में आप वीडियो देखे हो तो यू वुड बी लर्निंग ए लॉट. सो अभी स्नाइपर ट्रेडिंग एंड स्नाइपर इन्वेस्टिंग दोनों में वी हैव गॉट लाइक 50% का कूपन कोड भी है एंड कूपन कोड इज रथ यात्रा. यू कैन जस्ट गो एंड अप्लाई. नीचे में दोनों का लिंक है. एंड फॉर ऑल दोज इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग आई यूज़ ए प्लेटफॉर्म धन. उसका वेब इंटरफेस बहुत ही अच्छा है एंड मोबाइल का ऐप ऑल्सो फुल्ली फीचर्ड. इन केस इफ यू आर लुकिंग टू यूज़ ए ब्रोकर ऐप विच इज़ फ्री, कोई पैसा नहीं लगता ऑफकोर्स रजिस्टर करने में. धन का भी नीचे में लिंक है, यू कैन गो एंड रजिस्टर. ठीक है. अभी नाउ कमिंग बैक टू द ईवी स्पेस. तो ईवी क्या है? सो ईवी इज बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब क्या है? जिसमें हमें तेल नहीं लगती है, बैटरी से कार, बाइक, साइकिल जो भी हो वो बैटरी से चलती है. तो ईवी सेक्टर जो है इन लास्ट 5 ईयर्स लाइक 2019 से 2024 अगर हम पकड़ते हैं, like this has grown for up to close to like 40 to 50% ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है ये सेक्टर में. ठीक है. तो EVs आर लाइक मैसिव एंड आई वुड से EVs आर द फ्यूचर. इंडिया अभी तक अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाई है बट वेरी सून इंडिया स्लोली विल ट्राई टू अडेप्ट. एंड वंस इंडिया अडेप्ट देन इतना ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा कि पीपल विल कीप ऑन रिपेंडिंग कि काश हम तब इन्वेस्ट कर लिए होते EV स्टॉक्स में. तो सो हम क्या करेंगे, ये वाला वीडियो में पार्ट बाई पार्ट डिस्कस करेंगे लाइक इंडिया में EVs का ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, इंडियाज़ में EVs का ग्रोथ का फ्यूचर क्यों है, क्यों हम कह रहे हैं कि EVs आर द फ्यूचर. थर्ड पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 20 स्टॉक्स का लिस्ट अपन ऐड करेंगे ट्रेडिंग व्यू में. उसका एक बार हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे एंड वी वुड बी एबल टू नो कि चलो ठीक है कौन सा सेक्टर मतलब EV सेक्टर में कौन सा स्टॉक कौन सा पार्ट का काम करेगी. क्योंकि EV सेक्टर ऐसा नहीं कि ओनली कार बाइक बना देने से हो गया. कार बाइक बनाने में जो पार्ट्स लगती है, कोई टायर बनाता है, कोई ग्लास बनाता है, कोई हेडलाइट्स बनाते हैं, कोई बैटरीज बनाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स. हम सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे. आई थिंक इन इंडिया मे बी इन द EV स्पेस देयर आर क्लोज टू लाइक 30 और 40 स्टॉक्स बट वी आर ओनली गोइंग टू सिलेक्ट एटलीस्ट दो स्टॉक्स जिनका मार्केट कैप भी अच्छा है, मार्केट वैल्यू भी अच्छा है, उनके टेक्निकल्स मेरे को अच्छे दिख रहे हैं. तो वी आर गोइंग टू पिक क्लोज टू लाइक 20 स्टॉक्स जिनको
मैं वॉच लिस्ट में रखा हूँ एंड यू गैस कैन ऑल्सो कीप ऑन द वॉच लिस्ट एंड जस्ट ट्राई टू फिल्टर इट आउट एंड सी वॉट एवर लुक्स गुड टू यू, मे बी वैल्यू देख के आप मे बी इन्वेस्ट भी कर सकते, टोटली अपॉन योर डिसीजन, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात ये करते हैं कि इंडिया में ईवी का जो सेल्स ग्रोथ हुआ है इन लास्ट 4 to 5 years कैसे क्या हुआ है। सो टॉप फैक्ट्स आर रैपिड सेल्स ग्रोथ। ईवी सेल्स इन इंडिया ग्रू एट ओवर 50% कैगर फ्रॉम 2019 to 2023 एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है। फेम जो स्कीम है उसमें इट्स बूस्टिंग द ईवी एडॉप्शन थ्रू सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स। उसके बाद बहुत सारे ईवी मॉडल्स में आजकल तो सारे ब्रांड्स अपने ईवीज को मॉडल निकाल रहे हैं। 2019 से अगर हम पकड़ेंगे 2023 तक क्लोज टू 20 या 30 मॉडल तो ईवीज के ऑलरेडी आ चुके हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 2019 में ओनली 500 थी, आज 2023-24 में क्लोज टू 5000 से 6000 चार्जिंग स्टेशन ऑलरेडी बन चुकी है। टू व्हीलर का भी डोमिनेंस आ चुका है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ऑलरेडी आ चुके हैं एंड ऑलरेडी अभी नए बहुत सारे आने वाले हैं। कमर्शियल ईवीज पकड़ लो, इलेक्ट्रिक बस हो गए, इलेक्ट्रिक ट्रक्स हो गए, उसके बाद ऑटोज हो गए, 3 व्हीलर्स हो गए, ये सारे भी बहुत ही उसमें सर्ज आया हुआ है। एंड टाटा मोटर्स तो भाई उड़ ही रहा है, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। बैटरी का भी जो कॉस्ट डाउन हो चुका है क्लोज टू 20%, विच इज एक्चुअली मेकिंग द ईवीज मोर अफोर्डेबल। उसके बाद जाके इन्वेस्टमेंट मतलब इंडियन रिटेलर हो गए, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, वो भी ईवी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो अगर आप ईवी का ग्रोथ का ओनली चार्ट देखोगे तो चार्ट लुक समथिंग लाइक दिस फ्रॉम 2019 till 2023-24 राइट नाउ एंड यू कैन सी द मैसिव ग्रोथ। मतलब इट्स कंप्लीटली मतलब पूरा जा रहा है ऊपर ही, मतलब इट्स पॉइंटेड टुवर्ड द अप ओनली। नाउ वी नीड टू नो लाइक व्हाई ईवी इन इंडिया इज नॉट ग्रोइंग। उन लोगों को लग रहा होगा अरे हम लोग तो कब से सुन रहे हैं कि ईवी ग्रो करेगा, ईवी इज द फ्यूचर, बट ईवी स्टॉक्स तो मूव ही नहीं कर रहे हैं। ईवी वाला स्पेस में तो इतना हलचल है भी नहीं, क्या रीजन है? वी नीड टू एक्चुअली नो द रीजंस एज वेल। सो बेसिकली द मेन रीजंस आर हाई अपफ्रंट कॉस्ट। द इनिशियल परचेज प्राइस ऑफ ईवीज इज स्टिल मच हायर देन कन्वेंशनल व्हीकल्स, मेकिंग देम लेस अफोर्डेबल फॉर मेनी कस्टमर्स। क्योंकि ईवीज जो कार्स बाइक्स हो गए वो थोड़े एक्सपेंसिव रहते हैं, तो लोगों को लगता है एक्स्ट्रा पैसा हम क्यों दें, हम नॉर्मल वाला तेल वाला गाड़ी ही ले लेते हैं। Insufficient charging infrastructure, the lack of widespread accessible charging station can limit the practicality of owning and using an EV. जब भी आप यूज करते हो EV तो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको चार्ज करना पड़ेगा, कहीं तो आप रह के चार्ज करोगे। इंडिया इज बहुत ही बड़ा देश, देखो बहुत बड़ा देश है, तो बेसिकली हमें बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन चाहिए टू एक्चुअली मेक द पीपल सेफ कि चलो ठीक है हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो चलो ठीक है चार्जिंग स्टेशन है, हम लोग को रोड में आ जाएगा हम चार्ज करके जा सकते हैं। बट स्टिल नाउ मतलब अगर हम देखेंगे तो उतना ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन अभी तक आया नहीं है। सेकेंड, रेंज एंग्जाइटी, ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। लोग जब भी निकलते हैं, मेरे साथ भी एक बार हुआ था व्हेन आई वाज ड्राइविंग स्विट्जरलैंड, जो पकड़ लो कि आपने फुल चार्ज करके आप निकले हुए हो एंड यू आर ड्राइविंग, आप थोड़ा एक्स्ट्रा ड्राइव करके चले गए, उसके बाद जैसे ही आपको 100 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर दिखाता है उसके बाद रेंज एंग्जाइटी होता है कि अरे मैं कहाँ पे चार्ज करूँ, मेरे को भी चार्जिंग स्टेशन ढूंढ रहा है। वो एक एंग्जाइटी खतरनाक रहता है एंड लोगों को उसमें से पसीना हो जाते हैं। इसीलिए आई थिंक दैट इज अगेन वन ऑफ द वेरी मेन रीजन जो कि लोगों एक्चुअली अभी तक मतलब वो इतने अडॉप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड द बेस्ट सोल्यूशन फॉर रेंज एंग्जाइटी इज गोइंग टू बी लाइक हमें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारा वास्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जब आ जाएगा, दिस रेंज एंग्जाइटी थिंग इज ऑफ कोर्स गोइंग टू गो। उसके बाद आ गया लिमिटेड मॉडल अवेलेबिलिटी। द वैरायटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ईवी मॉडल्स इन इंडियन मार्केट इज स्टिल लिमिटेड। अगर हम वैसे देखेंगे तो उतने ज्यादा, जैसे टेस्ला अभी तक इंडिया में नहीं है, लोगों को लगता है कि टेस्ला इज वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स फॉर द मतलब ऑफ कोर्स नॉट द बेस्ट इलेक्ट्रिक कार्स। बेस्ट अगर बोला जाए इट्स गिवन द पोर्शे टाइकैन या फिर मर्सिडीज का जो है अपना EQS, ऑल दोज आर गोइंग टू बी द बेस्ट कार्स, बट अगेन दोज आर वेरी expensive, not very affordable of course. But if you're looking for affordable very good electric car, I would say Tesla is one of the best electric cars. But अभी तक इंडिया में टेस्ला नहीं है, और से बहुत सारे ब्रांड्स हैं, चाइनीज ब्रांड्स में आ चुके हैं, बट अभी तक इफ यू सी टेस्ला इट्स स्टिल नॉट इन इंडिया। उसके बाद हो गया लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस। अभी भी इंडियंस को प्रॉपरली ईवीज कैसे काम करती है, चार्ज कैसे करते हैं, रेंज को हम कैसे एस्टिमेट करें, ये सारा अवेयरनेस अभी तक प्रॉपरली आया नहीं। देखो इंडिया बहुत बड़ा देश है एंड धीरे धीरे जब लोग अडेप्ट करेंगे इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। तो इसीलिए सिंस इट्स टेकिंग टाइम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लोगों के बीच में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगा, लोग खरीदेंगे, चार्ज करेंगे, 5-10 लोगों को बोलेंगे, उसके बाद ओनली दिस थिंग इज एक्चुअली गोइंग टू ग्रो। नाउ हाउ वी फील कि ईवी इज द फ्यूचर। आपको लगता हो कि अरे ईवीज तो बोल रहे हैं फ्यूचर, पर ईवीज का तो फ्यूचर आ ही नहीं भाई। ईवीज की फ्यूचर है आई वुड से, एंड इसका बहुत सारे रीजंस है। वंस यू गेट इनटू द रीजंस यू वुड बी एबल टू नो ठीक है दिस इज एक्चुअली द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू दिस ईवी स्पेस, जब आपको फेयर वैल्यू एक मिल रहा होगा। बिकॉज वंस द होल सेक्टर गोइंग टू स्काई रॉकेट, अभी ऑलरेडी 50% ऊपर वो जा चुका है, और जब वो और भी ऊपर जाएगा तब आप रिपेंड करोगे काश में तब खरीद लिया होता, काश में तब इन्वेस्ट कर लिया होता। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली यू नीड टू नो कि व्हाई वी ऑलवेज कीप ऑन फोकसिंग कि ईवी सेक्टर में एक्चुअली पैसा थोड़ा ना थोड़ा इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो सबसे फर्स्ट इज गोइंग टू बी गवर्नमेंट इनिशिएटिव।
incentives. The Indian government is actively promoting EVs through various incentives and subsidies. Rising fuel prices, with traditional fuel prices rising, EVs offer a cost-effective alternative, of course. Environment concerns, EV plays a crucial role in reducing carbon emissions हो गया, contributing to a cleaner, greener environment. उसके बाद technological advancements, rapid improvements in EV technology such as battery efficiency हो गया, charging infrastructure हो गया. Those are actually making the EVs more accessible and practical. उसके बाद growing consumer awareness. As awareness and understanding of EVs grow among consumers, demand for this environment-friendly vehicles is expected to rise and only rise. उसके बाद आ जाते हैं अपने स्टॉक्स के लिस्ट पर. हमने जो 20 स्टॉक्स को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, हमने उसको ट्रेडिंग व्यू में ऐड किया है, उसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे. पहले वो लिस्ट को पकड़ लेते हैं क्या क्या है. सो द लिस्ट इज टाटा पावर, टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, एक्साइड इंडस्ट्रीज, अमर राजा बैटरीज, ग्रिप्स, कॉट, महिंद्रा कॉर्प इंडिया, ओलेक्ट्रा, जेबीएमए, सोनाकम्स, मदरसन सुमी, भारत फॉर्ज, प्रीकॉल लिमिटेड, श्री पिस्टन, HSCL, RK Forge. So those are basically the 20 stocks what we have shortlisted and added to your trading view. अभी चलते हैं, हम क्या करते हैं ट्रेडिंग व्यू में जाके ये हर स्टॉक्स का एक बार हम क्या करते हैं टेक्निकल एनालिसिस करते हैं. उसके बाद जाके नेक्स्ट जाएंगे इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे एंड चूज करेंगे चलो ठीक है किसका कैसा कौन सा अभी कौन सा स्टेज में है. ठीक है, लेट्स गो टू द कंप्यूटर एंड डू ए टेक्निकल एनालिसिस ऑफ दोज स्टॉक्स. ऑल राइट, सो अभी मैंने यहाँ पे एक ट्रेडिंग व्यू में मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है ओनली फॉर द EV स्टॉक्स एंड यहाँ पे वही 20 स्टॉक्स को मैंने ऐड कर दिया विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सो अभी मैंने थंबनेल में डाला हुआ है वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टॉक्स विच आर लेस देन 1000 बट देयर आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ स्टॉक्स विच आर एक्चुअली वेरी वैल्यूएबल एंड वी एब्सोल्युटली नीड टू डिस्कस देम. सो उसको सबको ही मैंने लिस्ट में रखा हुआ है. सो अभी अगर मैं प्राइस के हिसाब से रखूँ तो ऐसे कुछ दिखता है एंड चेंज के हिसाब से देखें तो ऐसे कुछ. तो प्राइस के हिसाब से ही करते हैं, एक एक करके डिस्कस अपन करेंगे. ठीक है, सो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं एक बार टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स को देखते हैं, उसके बाद जाके वी आर गोइंग टू डिस्कस की फंडामेंटल एनालिसिस भी थोड़ा कर लेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एनालिसिस हम क्या करेंगे चार्ट्स देखेंगे. तो आपको चार्ट्स देखना थोड़ा समझ में आना चाहिए. सो हम क्या करते हैं एक एक करके चलते हैं. सो सबसे पहला अपन चलते हैं बजाज ऑटो. ठीक है, सो दिस इज बजाज ऑटो. यहाँ पे मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ सो एटलीस्ट यू कैन सी द नेम्स. ठीक है, यहाँ पे फेयर इनफ. ठीक है, सो आपको यहाँ पे अभी ये भी दिख गया, नेम भी दिख गया एंड कितना प्राइस चल रहा है, आज का डेली का चेंज क्या है वो भी दिख गया. फेयर इनफ. ओके, तो सबसे पहला बजाज ऑटो में चलते हैं. बजाज ऑटो नाउ इफ यू सी बजाज ऑटो इन डेली चार्ट्स यू कैन सी दैट इट्स कॉन्स्टेंटली ऑन ए अप ट्रेंड. मतलब कॉन्स्टेंटली चल रहा है. अगर देखा जाए 4 सितंबर 2023 से 4000 से लेकर 10,000 हो चुका. मतलब क्या ग्रोथ है ये, क्या ग्रोथ है देखो. मतलब एक साल में 121% का ग्रोथ विच इज़ लाइक क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी. तो हम अभी लेंगे तो कहाँ लेंगे. ऑफ कोर्स ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जा चुका है. 50 EMA से भी ऊपर चले जा चुका है. 200 EMA से तो ये बहुत ही दूर है. तो यहाँ पे अभी हमारा प्लान कैसा रहना चाहिए. व्हाट आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना पुट 2 अलर्ट्स. तो मैं 2 अलर्ट रखूँगा. एक अलर्ट रखूँगा अपना 50 मूविंग एवरेज के आसपास. ठीक है, 50 मूविंग एवरेज के आसपास अपन रखेंगे एक एंड उसको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक रखेंगे. और एक अपन रखेंगे वही सेम वाला, अगर कोई कभी एक खतरनाक वाला डिप अगर आ जाता है सो मे बी एक यहाँ पे अपन एक डिप में रखते हैं कि चलो ठीक है अगर यहाँ कहीं आया तो हमें यहाँ कहीं हमें एक अच्छा खासा पोजीशन मिल सकता है. तो ये 2 अलर्ट अभी हम रखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक अलर्ट डाला हुआ है कि 50 मूविंग एवरेज के पास 9000 के आसपास आता है तो आई विल ट्राई टू डिसाइड. एंड अगर कभी 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया देन तो बहुत ही अच्छा खासा एंट्री बनेगा. तो हमारा प्लान ऐसे कुछ रहे. मार्केट ये तो भाई रिट्रेसमेंट ले ही नहीं रहा है, कॉन्स्टेंटली ऊपर 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 जा रहा है. बट अगर कभी एक अच्छा वाला डिप आता है तो यहाँ कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट होता है तो हम कहीं यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं विच विल बी लाइक क्रेजी, विच विल लाइक ग्रेट. मतलब खतरनाक वाला रिटर्न आएगा. अगर 200 मूविंग एवरेज तक आ जाता है तो क्लोज टू 30% का तो ग्रोथ ऐसे ही मिल जाएगा. तो बजाज ऑटो इज रनिंग एट समवेयर अराउंड 9600 राइट नाउ एंड दोज आर आवर 2 अलर्ट्स. तो सेकंड में चलते हैं हीरो मोटरकॉर्प. हीरो मोटरकॉर्प हम देखते हैं हीरो मोटरकॉर्प भी भाई सेम ही है. ये भी कॉन्स्टेंटली मतलब वो उड़ते ही जा रहा है. मतलब 9 अक्टूबर से लेके अगर हम देखेंगे ओ भाई साहब 100% का रिटर्न. अभी 100% रिटर्न में हम इतना ऊपर में तो जाके इन्वेस्ट करना तो मेरा स्टाइल नहीं है. तो मैं क्या करता हूँ वेट करता हूँ थोड़े अच्छा खासे मतलब ये के लिए. तो मैं क्या करूँगा यहाँ 200 मूविंग एवरेज के आसपास एक अपना अलर्ट रखूँगा
और एक अलर्ट रखूँगा मैं अपना 50 मूविंग एवरेज के आसपास एक अलर्ट रखूँगा, ठीक है। तो 200 मूविंग एवरेज के पास एक अलर्ट है मेरा, 200 इसके पास एक अलर्ट है, 2 अलर्ट डाल के रख देते हैं। अगर कभी आता है तो हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प में भी 2 अलर्ट्स केप्ट, तो अगर कभी आता है तो अपन डिसाइड करेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा में चलते हैं अभी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओ भाई ये तो सारे ऐसे ऊपर गए हुए हैं कि मतलब आपको देख के लगता होगा कि कितना अच्छा खासा पैसा आपने गंवा दिया है। मतलब ऑटो सेक्टर इज़ लाइक बूमिंग आप कह सकते हो। मतलब क्या है ये 90-100% का ग्रोथ, क्रेजी। मतलब यहाँ अगर हम पकड़ते हैं अक्टूबर 2023 में 1400 रुपये एंड आज हो गया है ऑलरेडी 3000 रुपये। मतलब टू मच अप कर्व में है। तो क्या यहाँ पे भी हम कुछ इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है इतना ऊपर में जाके, तो मेरा स्टाइल नहीं है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अलर्ट डालूंगा और एक अलर्ट अपन डालूंगा यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज के पास एक अलर्ट डालूंगा, 200 मूविंग एवरेज डे के पास एक अलर्ट डालूंगा। दोनों में 2 अलर्ट डाल के अपन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। टीवीएस मोटर्स में भी अगर हम देखेंगे, टीवीएस मोटर्स ये भी भाई चालू है। ये भी देखो कांस्टेंट अप कर्व। एक बार खाली जून 4 में एक बार आया हुआ है, उसके बाद देखो रॉकेट। मतलब जून 4 में भी जिसने अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा 50 मूविंग एवरेज से ऑलरेडी इट्स अप बाय 20%। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपया लगाया हुआ है, 2 लाख का ऑलरेडी प्रॉफिट आपका चल रहा है। 1 करोड़ लगाया हुआ है तो 20 लाख का ऑलरेडी आपका प्रॉफिट चल रहा है। ट्रेड भाई क्यों करना है भाई, इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा है कि क्यों बेकार का ट्रेड करना है आपको हर दिन। सो ईजी ट्रेड्स, क्या खतरनाक आया है देखो। बट यहाँ पे भी ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो अपन तो यहाँ पे ट्रेड अपना नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना रखेंगे अलर्ट अपना एक 200 मूविंग एवरेज के पास एक अलर्ट रखेंगे एंड 50 मूविंग एवरेज के पास 2 अलर्ट रखेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे अगर कभी आता है तो अपन इन्वेस्ट करने के लिए ट्राई करेंगे। JBM में भी देखते हैं तो बजाज ऑटो, आप जानते हो कि बजाज ऑटो मेक्स अपना जितने सारे टेम्पो ऑटो रिक्शा आप देखते हो, मोस्ट 90% ऑफ देम आर एक्चुअली मेड बाय बजाज ऑटो एंड बजाज ऑटो वो सबको EV धीरे धीरे कर लेगी। तो बजाज ऑटो का तो भाई खतरनाक ग्रोथ पोटेंशियल है। हीरो मोटोकॉर्प भी जितने सारे बाइक्स आते हैं, बाइक्स को वो क्या करेंगे, मोस्टली वो EVs को ही लॉन्च करेंगे, तो इसका भी ग्रोथ है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कार्स भी लॉन्च करने वाली है अभी एंड बहुत सारे, उनका तो भाई पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा है। TVS मोटर्स ऑल्सो वो स्कूटी हो गया, ये सारे लॉन्च करेंगे, लॉन्च कर भी चुके हैं ऑलरेडी, जो कि बहुत फेमस हो चुका है और भी नए नए मॉडल आने वाले हैं। JBM में अगर हम देखेंगे, JBM में इज बेसिकली ए वेरी फेमस ब्रांड इन इंडिया हु मेक्स इलेक्ट्रिक बस वो बनाती है। इसका भी अगर आप देखोगे, इसको भी वो पूरा अक्टूबर से वो उड़ के गया हुआ है, थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया अच्छा खासा, उसके बाद इसका थोड़ा अभी अच्छा मेरे को दिख रहा है। ये वाले जोन से अगर हमें मिलता है, जून 4 से अगर हम देखेंगे, जून 4 यहाँ से यहाँ तक क्लोज टू 24% का ग्रोथ हुआ है। उसके बाद जाके अभी वो थोड़ा वो रिट्रेसमेंट लेके नीचे आया हुआ है, 12% का वो नीचे आया हुआ है। तो इसका मैं क्या करने वाला हूँ, एक डिप के लिए वेट करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक अलर्ट देने वाला हूँ। तो अगर कभी आता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना एक ट्रेड बनाने के लिए ट्राई करेंगे एंड एटलीस्ट हाई वाला जो है 40-50% का ग्रोथ के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। सो दिस विल बी गुड एंट्री पॉइंट। अगर कभी 200 मूविंग डे के एवरेज कोई फॉल चाहिए, भाई इंडेक्स इतना उड़ रहा है तो क्या ही कम फॉल आएगा। अगर कोई फॉल आता है तभी जाके हम देखेंगे। 3 पिस्टन अगर हम देखें, ये बेसिकली बहुत सारी EV कार्स के कंपनीज़ के लिए वो पिस्टन्स बनाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी अगर देखोगे ये भी भाई उड़ के गया है पूरा, एक बार रिट्रेसमेंट लिया है, उसके बाद फिर से उड़ के गया हुआ है। जून 4 में जिस दिन ड्रॉप हुआ था उससे अभी तक वो ऑलरेडी 20-30% वो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो हम इसमें भी वेट करेंगे, अच्छा खासा एंट्री एक आएगा तो हम क्या करेंगे, इसमें भी एक अपना क्या करते हैं, अलर्ट डाल के रखते हैं। अगर कभी आएगा तो हम डिसाइड करेंगे। अभी के लिए तो वो अच्छा जगह में है, 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी है। भारत फॉर्ज ये भी बहुत सारा पार्ट्स बनाती है फॉर द EV कार्स। ये भी देखो भाई क्या खतरनाक है, ये कर्व क्या है, कांस्टेंट ऊपर रॉकेट की तरह जा रहे हैं एंड नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ पे जून 4 में एक बार वो आया हुआ है। जून 4 में अगर हम देखेंगे, जून 4 से अभी तक वो ऑलरेडी 30% ग्रोथ ऑलरेडी आ चुका है। हाँ डैम इट मैन। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक छोड़ देते हैं, ऐसे लगा के छोड़ देते हैं। अगर कहीं आएगा तो डिसाइड करेंगे, यहाँ पे लगा के छोड़ देते हैं। ओलेक्ट्रा अगेन ए वेरी फेमस ब्रांड वो मेक्स EV बसेस वो बनाती हैं, कमर्शियल व्हीकल्स, कमर्शियल बसेस बनाती हैं। जून 4 का जो डिप था वहाँ से अभी तक ऑलरेडी 22-24% आ चुका है। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक डालने वाला हूँ अलर्ट एंड इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। अगर कभी आता है तो हम डिसाइड करेंगे ये हाई को टारगेट करने के लिए एंड स्टॉप लॉस विल बी समवेयर अराउंड दिस। तो 1:2 वाला स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ तक आने के लिए हम ट्राई करेंगे।
ये हो गया हमारा अमर राजा बैटरीज, दोज मेक्स बेसिकली द बैटरीज बनाती हैं, ईवी कार्स के लिए बैटरीज बनाती है। इसका भी अगर देखोगे तो ये भी कॉन्स्टेंटली उड़ते गया हुआ है। जून 4 में यहाँ पे आया हुआ है, जून 4 से अभी तक, ओ भाई साहब 50% ग्रोथ मैन। मतलब यहाँ जिसने जून 4 में डिप में खरीदा क्लोज टू 50%, मतलब 1 करोड़ अगर किसी ने लगाया हुआ है उसको तो 50 लाख का प्रॉफिट ऐसे ही दिख रहा है। मतलब ओनली 10-20-15 दिन में उसको 50 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। मतलब सोचो कि इन्वेस्टिंग इज सो सेफ टू मेक मनी। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अलर्ट डाल के रख ही देते हैं कि अगर कभी आता है तो हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। यहाँ पे 2 अलर्ट डाल के रखते हैं एक्चुअली। तो ओके, टाटा मोटर्स हो गया। टाटा मोटर्स तो भाई रॉकेट की तरह उड़ा हुआ है। टाटा मोटर्स भी आप देख ही नहीं सकते, कॉन्स्टेंटली वो देखोगे अगर अक्टूबर मार्च 2023 400 रुपये से लेके आज वो 1000 रुपये, मतलब 300 टाइम, मतलब 3 टाइम्स ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज क्लोज टू लाइक 200% ग्रोथ आप कह सकते हो। जून 4 में अच्छा खासा एक डिप आया हुआ है, जिस दिन वो इलेक्शन का रिजल्ट था उस दिन से अभी तक ऑलरेडी वो 20% के ऊपर चल रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे दे देते हैं एक 8850 के आसपास, 200 मूविंग डे के एवरेज के आसपास अगर आता है तो हम उसके बाद सोचेंगे कहीं एंट्री लेने के लिए। आरके फॉर्ज अगेन ए वेरी फेमस वन हु मेक्स पार्ट्स, एंसिलरी पार्ट्स फॉर द ईवी कार्स एंड बाइक्स, 3 व्हीलर्स के लिए बनाती है वो पार्ट्स। एंड यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये भी भाई चार्ट्स पूरा कॉन्स्टेंटली उड़ के गया हुआ है। सारे चार्ट्स भाई ऑल टाइम हाइज के आसपास ही है। तो ऐसे चार्ट्स में तो मैं नॉर्मली ट्रेड नहीं करता, तो ओनली हम क्या करेंगे, अलर्ट डाल के ही रख सकते हैं और कुछ तो कर नहीं सकते। तो यहाँ से वो उड़ के गया है। जून 4 से अगर हम देखेंगे, जून 4 से दिस हैज गॉन क्लोज टू लाइक डैम 50%. सोना कम्स अगेन ए वेरी फेमस कंपनी हु मेक्स ऑल द प्रिसीजन पार्ट्स सब कुछ बनाती है। इसका तो आई थिंक मेरा एंट्री भी एक था, ये भी देखोगे तो मेरा एंट्री ऑलरेडी मार्क होके था, बट मैंने एंट्री ले नहीं पाया, कुछ तो एक प्रॉब्लम था, मैं ले नहीं पाया। एंड उसके बजाय क्या उड़ के गया है, देखो जून 4 में भी वो आया हुआ है, उसके यहाँ पे आया है, उसके बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अच्छा एंट्री में भी मिल सकता है। अगर ये 610 के आसपास आ जाती है तो हमें एक अच्छा एंट्री में भी मिल सकता है। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसमें एक पॉइंट बना के रखते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बना के रखते हैं, डन। तो अगर कभी ये यहाँ पे 200 मूविंग डे के एवरेज के पास आता है, 600 रुपये के पास आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे एटलीस्ट 20% वाला ग्रोथ वाला थोड़ा के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ बेसिकली वो बैटरीज बनाती है, तो बैटरीज बनाती है मतलब इंडिया में वो सेक्टर में ओनली 2 ही मेन प्लेयर्स है। वन इज़ अपना अमर राजा बैटरीज और एक हो गया अपना एक्साइड बैटरीज। तो एक्साइड बैटरीज अमर राजा बैटरीज दोनों में मैंने अच्छा खासा अलर्ट भी डाल के रखा हुआ है। यहाँ पे अगर देखो जून 4 में 50 मूविंग डे के एवरेज को टच करके उसके बाद जाकर रॉकेट की तरह उड़ गया। 200 डे के पास अगर कभी आता है तो हम सोचेंगे। प्रीकॉल लिमिटेड अगेन दोज मेक्स पार्ट्स एंड ये सारे स्विचेस एंड ये सारे जो अपने कैपेसिटर्स हो गया, ये सब कुछ बनाती है ईवी कार्स के लिए। इसका भी चार्ट्स अच्छा ही दिख रहा है, पूरा ऊपर चल रहा है, बट हम क्या करेंगे, इसके लिए भी आराम से वेट करेंगे, 200 मूविंग डे के एवरेज के आसपास वेट करेंगे और एक 400 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी अपन वेट कर सकते हैं। मिंडा कॉर्प अगर देखेंगे, दोज ऑल्सो मेक्स पार्ट्स फॉर ईवी कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स। ये भी देखो पूरा रॉकेट की तरह उड़ के गया हुआ है, ये भी भाई ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 200 मूविंग डे के एवरेज पे रख सकेंगे। टाटा पावर अगेन वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स, इसमें से मैंने बहुत बार बहुत पैसा बनाया हुआ है, तो इसमें मेरा अलर्ट ऑलरेडी लग के है 350 के आसपास अगर कभी भी आता है। सो आई एम गोइंग टू एंटर द स्टॉक अगेन विद वेरी हाई क्वांटिटी। मैं नॉर्मली इसमें टाटा पावर में बहुत हाई क्वांटिटी लेता हूँ, उसके बाद जाके बहुत कम टाइम रख के 10-12% जैसे ही मिलता है मैं क्या करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स आई वुड से, बहुत बार मैंने इसमें ट्रेड किया हुआ है। सो अभी ये यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, तो हम वेट करूँगा कि थोड़ा नीचे आएगा तो अच्छा खासा एंट्री मिलेगा। HSCL इज़ बेसिकली द मतलब कार्बन वाले जो केमिकल्स, मतलब बैटरीज बनाने के लिए जो केमिकल्स लगती है, ये वही हिमाद्री स्पेशलिटी, ये वही कंपनी है जो वो केमिकल सारे बनाती है। इसका भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अलर्ट डाल के रख देते हैं। अशोक लीलैंड अगेन ए वेरी फेमस वन, वो आगे जाके अभी बसेस भी बनाने वाली है, इलेक्ट्रिक बसेस बनाने वाली है, तो यहाँ पे उसको भी डाल देते हैं। ग्रेव स्कॉट ये 2 व्हीलर बनाने वाली है, इसका थोड़ा चार्ट, ये एक ही चार्ट जो है मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसमें कोई अलर्ट अपन नहीं डालें क्योंकि ये कंपनी मेरे को कोई सही नहीं दिख रही है। मदरसन सुमी अगेन ए वेरी फेमस कंपनी जो कि पार्ट्स बनाती है फॉर द ईवी कार्स, बाइक्स, कमर्शियल व्हीकल्स। इसका भी चार्ट देखोगे तो भाई खतरनाक उड़ के गया हुआ है, कॉन्स्टेंटली ऊपर मतलब है उसका पूरा पैटर्न। यहाँ पे भी एक अलर्ट डाल के छोड़ देते हैं। तो यही ये सारे अपने मोस्ट ऑफ द 20 स्टॉक्स जिसका हमने फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस अभी जस्ट किया, चार्ट्स देख के एंड चार्ट्स देख के हमने देखा है कहाँ पे अच्छा खासा एंट्री हमें मिल सकता है। हमने सारे में अपना अलर्ट्स भी डाल दिया, किसी में भी हम अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आई हैव जस्ट केप्ट द अलर्ट्स बजेगा कभी तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें एंट्री लेना है या नहीं लेना है। तो ये तो हो गया हमारा
टेक्निकल एनालिसिस, मतलब चार्ट्स देखे हमने, टेक्निकल एनालिसिस कर लिया। अभी अपन जाएंगे एंड करेंगे इन लोगों का फंडामेंटल एनालिसिस कि फंडामेंटली ये कौन से स्टॉक कहाँ पे बैठे हुए हैं, किसका कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, किसने कितना लोन है, क्या है वो है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सो अपना हो गया ये टेक्निकल एनालिसिस। अभी चलते हैं अपना फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। All right, so abhi we are in Tijori. This is a premium app which I use for fundamental analysis. So again अभी अपन चलते हैं, इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया EV स्टॉक्स को। तो all the 20 stocks what we just discussed in the trading view charts, उन सबको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ से लेटेस्ट प्राइस वाइज भी हम यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। 1 डे चेंज, किसका कितना लॉस हुआ, किसका कितना प्रॉफिट हुआ। भाई भारत फॉर्ज तो एक दिन में 5% ऑलरेडी जा चुका है, तो किसका कितना अप डाउन हुआ वो भी हम देख पा रहे हैं। पी सबका कितना कैसा है वो भी हम सब कुछ देख। ग्रिप्स कटन तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसको अपन काट ही देते हैं, इसका मेरे को टेक्निकल से भी अच्छा नहीं दिखा। तो पी के हिसाब से अगर हम देखते हैं, देख सकते हो JPM ऑटो इलेक्ट्रा, साला इतने सारे इतने हाई पी में ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ये पी भी हम देख सकते हैं, मार्केट कैप भी हम सबका देख सकते हैं। तो मार्केट कैप अगर आप यहाँ ऐसे सिलेक्ट करोगे तो यू वुड बी एबल टू सी दैट ऑल द स्टॉक्स विच वी जस्ट डिस्कस्ड, उन सबका मार्केट कैप इज मोर देन 5000 करोड़। तो 5000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है तो सही कंपनी ही होगा। छोटे मोटे कंपनीज तो बहुत सारे होंगे, उनको सब हम डिस्कस भी नहीं करते हैं। नॉर्मली ओनली चेक द कंपनीज हुज मार्केट कैप इज एटलीस्ट मोर देन 5000 करोड़, उसके बाद ओनली अपन डिस्कस करते हैं। तो अगर आप ऐसे में देखोगे तो देख सकते हो सबसे हाई में है महिंद्रा एंड महिंद्रा भाई 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप। एंड Q&Q सेल्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं, सेल्स देखो इनका कम है, इनका ज़्यादा। अशोक लीलैंड तो बहुत ज़्यादा शेयर है। ईयर ऑन ईयर अगर हम ग्रोथ देखते हैं, ओलेक्ट्रा का भी थोड़ा लॉस में चल रहा है। एंड और सारे कंपनीज अगर देखेंगे, JBM ऑटो तो 47% का ईयरली ग्रोथ में चल रहा है। EBITDA मार्जिन अगर देखें वो भी यहाँ पे दिख रहा है, ईयर ऑन ईयर EBITDA ये भी दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन भी दिख रहा है। टाटा मोटर्स तो भाई 83% प्रॉफिट, होली डैम। क्वार्टरली प्रॉफिट ये भी देखेगा। टाटा पावर ओ भाई साहब 1400% प्रॉफिट। परफॉर्मेंस भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आपको सब कुछ दिखेगा कि 1 डे चेंज क्या है, 1 वीक चेंज क्या है, 1 मंथ चेंज क्या है, 3 मंथ्स चेंज क्या है, 3 इयर्स का चेंज क्या है, 5 इयर्स का चेंज क्या है, 10 इयर्स का चेंज क्या है। सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद जाकर अगर हमें एक एक करके हमें कंपनीज के अंदर अगर हमें जाना है, सबसे पहले हम नीचे स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं अभी बजाज ऑटो। ठीक है, तो बजाज ऑटो अगर अपन चलते हैं तो बजाज ऑटो यू कैन सी दैट, तो यहाँ पे इट से शेयर प्राइस इंक्रीज ओवर लास्ट 10 years ड्यू टू अर्निंग्स, current versus historic valuation. Debt company should not have issues servicing its debt. Promoter holding, promoter has not sold any shares in the 90 days, which is very good. So 9 positives and 2 neutral, 6 negatives, 0 insufficient. इसको अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे हमें सब कुछ प्लस क्या है, नेगेटिव क्या है, ये सब कुछ दिखेगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज़ अच्छा है, प्लेज ठीक ठाक है, अदर इनकम नॉट अफेक्टिंग द रेशियोज ऑफ द कंपनी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन अच्छा है, कैपेक्स वर्सेस ROC अच्छा है। यहाँ से आपको सारे दिख जाएंगे। डेटा बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल है अभी। ROCS डिक्रीज वर्सेस 10 year ट्रेंड ये नेगेटिव है। मार्जिन स्टेबिलिटी थोड़ा नेगेटिव है। सेल्स ग्रोथ थोड़ा नेगेटिव है। करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन ये भी थोड़ा नेगेटिव है बिकॉज इट्स करेंटली लुकिंग लाइक मोर वेरी हाई वैल्यू। डेप्रिसिएशन इफेक्ट वो भी है। रिटेल होल्डिंग थोड़ा कम हुआ है। उसके बाद जाके प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर ने कुछ भी सेल नहीं किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड अगर हम मार्केट शेयर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्लोज टू 12% का मार्केट शेयर है, 2 व्हीलर्स में। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में 17%, 3 व्हीलर्स में 36% एंड 3 व्हीलर गुड्स कैरियर में क्लोज टू 50% फॉर द बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो का जो मेन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम यहाँ ही देख सकते हो कि 12% का मार्केट सेक्टर डायरेक्टली यहाँ पे ही है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सारा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाता है। एंड बजाज ऑटो का कैसे क्या चार्ट्स गया हुआ है, कैसे क्या गया है, ऑपरेशनल मैट्रिक्स कैसे किया गया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इनका जो ब्रांड्स है बजाज एवेंजर, गाड़ियाँ क्या क्या है, वो प्रोडक्ट्स क्या क्या बेचती है, वो सारे भी यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद कंपनी का फाइलिंग हो गया, एनुअल रिपोर्ट, यहाँ से हम क्लिक करके भी देख सकते हैं ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल द ईयर्स, उनका पूरा हर क्वार्टर का भी हमें डिटेल्स मिल जाएगा। नाउ इफ़ यू गो टू फिनेंशियल्स, सो नाउ इफ़ यू गो टू फिनेंशियल्स वी कैन एक्चुअली सी कि हमें जो मेन देखना है कि क्या क्या कुछ डेट वेट है कि नहीं। डेट है 1700 करोड़, कुछ भी नहीं है, चिलर है उनके लिए, तो वेरी मतलब अच्छा है, डेट बहुत कम है। एंड अगर हम देखेंगे प्रॉफिट मार्जिन से, अगर हम देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज समवेयर 2024, दिस इज 2024 में क्लोज टू 10,000 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
टैक्स है 2000 करोड़, नेट प्रॉफिट इज क्लोज टू 7500 करोड़ विच इज़ ह्यूज। 7500 करोड़ का प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स, मतलब सब कुछ टैक्स टूक्स कटने के बाद भी 7500 का उनके पास है अभी भी। एंड कैश फ्लो भी अच्छा ही खासा है, देखोगे तो कैश फ्रॉम कैश फ्लो कैसे, नेट कैश फ्लो कितना चल रहा है, इफेक्ट ऑफ एफएक्स, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फ्री कैश फ्लो एस्टिमेटेड 6000 करोड़ का तो ओनली कैश फ्लो ही पड़ा हुआ है। सो वेरी रिच कंपनी, वेरी बिग कंपनी बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो आप देख सकते हो। सो बजाज ऑटो इज लुकिंग गुड। वैसे ही करके हम एक एक करके सब कुछ हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो नाउ इफ़ आई गो अगेन गो टू तिजोरी, सो ऐसे करके हम एक एक करके अभी हम सब में सब करने जाऊँगा तो इट्स गोइंग टू टेक ए लॉट ऑफ टाइम। तो हम क्या करते हैं, कुछ करते हैं। बजाज ऑटो का हमने जैसे कर लिया, हीरो मोटो का, और महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर्स, जेबीएम ऑटो, श्रीराम पिस्टन एंड स्क्रीन, भारत फॉर्ज, और जो हमें कोई अच्छा दिख रहा है एक्साइड बैटरीज क्या करके देखते हैं। एक्साइड बैटरीज, सो एक्साइड बैटरीज इज़ लुकिंग समथिंग लाइक दिस। पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। एंड यहाँ पे इफ़ वी सी स्टोरेज बैटरी 60%, टू व्हीलर OEM बैटरीज 86%, मार्केट मतलब मार्केट शेयर में आधे से ज़्यादा यही वो होल्ड करते हैं पूरा। इंस्टीट्यूशनल सेल्स हो गया, नॉन इंस्टीट्यूशनल सेल्स, अदर स्टोरेज बैटरीज, उसके बाद जाके इनका और कौन पीयर कंपैरिजन कौन कौन है, अमर राजा बैटरीज एक साइड है, और भी बहुत सारे छोटे मोटे कंपनीज भी है। अभी हम फिनेंस पे अगर चलते हैं डायरेक्टली, इफ़ यू गो टू द फिनेंस यू कैन सी दैट यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ क्लोज टू 1000 करोड़ का प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स विच इज़ वेरी गुड। फ्री कैश फ्लो 1500 करोड़ का कैश फ्लो है विच इज़ वेरी गुड, मतलब पैसा भी उनके पास है। एंड उनका अगर हम डेट देखेंगे, डेट इज़ ओनली 600 करोड़ विच इज़ नथिंग, चिलर। तो इट्स अ वेरी गुड कंपनी, एक्साइड इंडस्ट्रीज आई वुड से। सो उसके बाद जाके हम और भी देखते हैं, और भी कुछ अच्छा थोड़ा देखते हैं। अमर राजा बैटरीज का हम एक्साइड जैसे देख लिए। एक बार हम देखते हैं टाटा पावर का एक बार देखते हैं। तो टाटा पावर इफ़ यू सी इट्स रनिंग समवेयर अराउंड दिस। यहाँ पे अगर हम देखते हैं रिटेल होल्डिंग, प्रोमोटर होल्डिंग इज़ न्यूट्रल विच इज़ वेरी गुड। एंड यहाँ पे गुड थिंग्स क्या है, बैड थिंग्स क्या है, माइट हैव इशू सर्विसिंग इट्स डेट लगता है थोड़ा ज़्यादा है इनका। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मार्केट शेयर इज़ 3.36%। क्या क्या करते हैं, जनरेशन 27%, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 51%, अदर्स रिन्यूएबल्स क्लोज टू 20%। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे टाटा पावर, JSW एनर्जी, NHPC, टोरेंट पावर, SJVN, ये सारे हैं उनके पीयर कंपैरिजन। फिनेंसिस में अगर हम जाके देखते हैं, मेरे को लगता है इनका थोड़ा डेट थोड़ा होगा। डेट इज़ क्लोज टू 50,000 करोड़। भाई डेट बहुत ज़्यादा है कंपनी का, अगर देखेंगे तो डेट बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ अराउंड 2230, मतलब 2000 करोड़ का प्रॉफिट है। एंड फ्री कैश फ्लो इज समवेयर अराउंड 4500 करोड़। तो कैश फ्लो भी अच्छा है एंड प्रॉफिट भी अच्छा है, एंड प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है, अच्छा खासा बढ़ते जा रहा है। 2021 में 294 करोड़ था, उसके बाद जाके सीधा 2800 करोड़, 3000 करोड़, अभी आधा साल हुआ है, क्लोज टू 2000 करोड़ ऑलरेडी चल रहा है। बट द ओनली थिंग विच इज़ नॉट लुकिंग गुड इज दिस डेट। भाई 50,000 करोड़ का तो ओनली इन्होंने लोन ले रखा हुआ है, डेट ही ओनली 50,000 करोड़ है। सो विच इज़ नॉट वेरी गुड। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक हो गया, और कोई एक कंपनी को पकड़ लेते हैं, लेट्स से अपना इसको पकड़ लेते हैं, अशोक लीलैंड को पकड़ लेते हैं, विच इज़ गोइंग टू मेक ऑल दोज कमर्शियल ट्रक्स एंड ऑल दो स्टफ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, वो भी सारे दिख रहे हैं। एंड प्रॉफिट मार्जिन ये थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा कम है, 3%। 16.28% इज़ द कमर्शियल व्हीकल। इलेक्ट्रिक बसेस में 2% है, लाइट व्हीकल्स में 70% का मार्केट शेयर है, एंड 32% का मीडियम एंड हेवी गुड्स में है। कमर्शियल व्हीकल में 16% विच इज़ गुड। इलेक्ट्रिक बस वो अभी बनाने वाले हैं, तो बहुत जल्दी ये वाला बढ़ जाएगा उनका, जल्दी आ जाएगा उनका। वैसे भी अगर हम फिनेंसेस में जाके देखते हैं तो अशोक लीलैंड इज रनिंग समवेयर ऑन 236 वैल्यू राइट नाउ, मार्केट कैप इज क्लोज टू 70,000 करोड़, एंड डेट भाई बहुत ज़्यादा है, 40,000 करोड़ का ओनली डेट ही है। सो डेट इज नॉट लुकिंग गुड। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 2,600 करोड़ एंड फ्री कैश फ्लो इज अराउंड 2 करोड़। बट द ओनली थिंग विच इज़ नॉट लुकिंग गुड इज दिस डेट। तो वो डेट मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं दिखा, तो दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट चेकिंग दिस स्टॉक मोस्ट प्रॉब्ली। टाटा मोटर्स अगर हम देखते हैं, टाटा मोटर्स तो भाई खतरनाक उड़ के गया है। मार्केट शेयर इज क्लोज टू 3,24,000 करोड़, मतलब जीरो अब गिनते जाओ, 1000 का वैल्यू में चल रहा है। एंड 11 पॉजिटिव्स
नेगेटिव इज ओनली 4. तो वेरी गुड अबाउट टाटा कंपनी है, मतलब भाई प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 7 to 8%. कमर्शियल व्हीकल्स में मार्केट शेयर है क्लोज टू 35%, इलेक्ट्रिक बस में क्लोज टू 20%, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्लोज टू 68%, लाइट कमर्शियल में 40%. तो ये दो आप देख सकते हो. इलेक्ट्रिक बस में मार्केट शेयर इज क्लोज टू 20%, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 68%. तो मेरे को लगता है ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये पूरा वैल्यू में जो भी अपकर्व हुआ है, इसमें से 90% ऑफ ग्रोथ अगर बोल सकते हो, पूरा हम ईवीज को ही हम मतलब थैंक यू बोल सकते हैं, ऐसे आप कह सकते हो. तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे, अगर फिनेंसियस में अगर हम चलते हैं, फिनेंसियस में व्हाट यू कैन सी इज डेट बहुत ज़्यादा है, 1 लाख करोड़ के आसपास डेट ही है. बट टाटा कंपनी जैसे है कि डेट लेके वो कंपनीज बहुत ही अच्छे चलती है. तो यहाँ पे अगर हम चलते हैं, नेट प्रॉफिट इज क्लोज टू 8,000 करोड़ आफ्टर टैक्स एंड कैश फ्लो इज अराउंड 7,000 करोड़. तो कैश फ्लो भी अच्छा है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, प्रॉफिट भी मतलब कॉन्स्टेंटली बढ़ते ही जा रहा है. लास्ट 2 साल में तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया है कंपनी ने. बट द ओनली थिंग इज डेट बहुत ज़्यादा है. तो ये डेट को मे भी टाटा को थोड़ा फिक्स करना पड़ेगा. तो टाटा मोटर्स का हमने ऑलरेडी देख लिया. वैसे ही करके बड़े बड़े कंपनीज का तो हमने ऑलरेडी देख लिया. ऐसे छोटे कंपनीज का आप जाके डायरेक्टली तिजोरी में भी देख सकते हो. बट मेन थिंग वाज कि हमने यहाँ से ऊपर नीचे करके हमने ऑलरेडी वी हैव सीन कि कैसे क्या ग्रोथ चल रहा है, किसका पी कितना है, मार्केट कैप कितना है. मोस्टली हमें यही देखना रहता है कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई कंपनी प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं. अगर कोई कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कर रहा है, मतलब भाई इट्स ए गुड थिंग. एंड मार्केट कैप भी अगर 5,000-6,000 करोड़ से ज़्यादा, इट्स ए गुड थिंग. पी भी अगर कम है देन इट्स ए गुड थिंग. उसके बाद जाके ईयरली कोई बड़ा वाला चेंजेस नहीं हुआ है देन इट ऑल्सो ए गुड थिंग. सो 3-4 फैक्टर देखना है. चार्ट्स अगर अच्छा देख रहा है देन मे बी इट्स ए वेरी गुड बाय. तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपको क्या करना है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट ऑल दो स्टॉक्स. हमने एक बार उसका फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लिया, टेक्निकल एनालिसिस भी कर लिया. तो आपको एक प्रॉपरली एक आइडिया आ गया होगा. एंड अभी आपको अगर रिसर्च करना है, आप डायरेक्टली गूगल जाके आप सारे स्टॉक्स के बारे में रिसर्च भी कर सकते हो. Alright guys, that's it for today. Hopefully you got to learn something new. So those are basically the 20 highly rated and most famous EV related stocks. क्योंकि EV मतलब लोगों को ओनली में ही मालूम होगा कि ओनली बजाज या फिर ओनली टाटा या फिर ऐसा नहीं है. इन सबको बनलेट से टाटा एक कार बनाती है या फिर बाइक बनाती है. टाटा सब कोई पार्ट्स नहीं, बट टाटा इज मेकिंग द कार. बट ऑफकोर्स दे आर पुटिंग द वायरिंग हार्नेस हो गया, वो मदरसन सुमी से लाती है. वो अगर उनको अगर क्या मतलब लाना है, हेडलाइट लाना है, वो मिंडा कॉर्प से लेके आएंगे. अगर उनको टायर लाना है, वो और एक कंपनी से लेके आएंगे. सो दिस इज बेसिकली हाउ द होल इंडस्ट्री वर्क्स. सो बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं इंडस्ट्री में. सो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव कलेक्टेड एंड मेड ए शॉर्ट लिस्ट ऑफ ऑल दोस 20 स्टॉक्स. होपफुली यू हैव गॉट टू लर्न अबाउट द टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस भी हमने करके देखा कि ये 20 स्टॉक्स का कौन से स्टेज में है. सो मे बी इट विल हेल्प यू टू मेक ए डिसीजन अबाउट कि हमें कौन से स्टॉक्स के अंदर जाना चाहिए, कौन सा नहीं जाना चाहिए, किसमें थोड़ा वेट करना चाहिए. इट्स कंप्लीटली योर डिसीजन. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. अगर अभी तक देख रहे हो तो आपको वैसे भी नॉलेज आ गया होगा. इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन, let me know in the comments and I will see you guys on the new vlog.